That is why I've decided कि चलो उसको ले लेते हैं. So first of all, let me take with this. Configure a process. Either I have given you these two options. Either you can go with the process with the workflow. दोनों से बनता है, by the way. On the hiring manager object, to send an email notification to the hiring manager after 15 minutes of creating the record. Now, what is the difficulty over here? The difficulty is that 15 minutes. The difficulty is that 15 minutes. If you go with the workflows, if you go with the workflow, let me go click the setup menu. Yeah, create workflows in approval. If I go with the workflows, if I go with the workflow, and if I try to create a workflow, if I try to create a workflow with some name, with some object, if I try to create a workflow, okay. So what is the minimum time? What is the minimum time? What I get is 1 hour. Minimum time is 1 hour. अभी मुझे पूरा create करना पड़ेगा. So let me just go back and see. So that was the main, main hurdle. That was the main hurdle. What's stopping you was you cannot, directly you cannot select a time below 1 hour in the workflows in the process builder also. But this is, this is a practical kind of requirement where we eventually require some kind of actions to be happened in terms of minutes, not in terms of hours. So how you are going to make this kind of automation? They will ask you this question in the interview also. They will ask you this question in the interview also. Okay, if you want to initiate any process, if you want to initiate any actions, maybe with the workflow or the process builder, जो कुछ भी आपका discussion चल रहा, but in terms of minute, I want to have the time in terms of minute, not in terms of hour. I mean, I just wanted to have below 1 hour. How you are going to, make this automation? तो अब कैसे create करना? So here is some. I need to have one formula field here. तो एक formula है जो मैं apply करना है, वो मैं आपको यहाँ पे बताने चाह रहा हूँ. ठीक है. So I'm going to do this with the workflow. You can even do with the process. Process से भी कैसे करना मैं दोनों demonstrate कर दूंगा यहाँ पर अभी, क्योंकि अभी इसके बाद में process में जाने ही वाला हूँ, इसलिए फिर मैंने पहले workflow ले लिया. So let's create this workflow on the hiring manager object. So let me select this hiring manager object from here. Let me select this hiring manager, HR manager object over here. Just click the next button. Rule name. Let me select this rule name. Email notification to the hiring manager. क्योंकि time dependent है, इसलिए I cannot go with the second criteria. You always know this. I mean, you all know this. If you want to have the time dependent actions, you cannot go with the second. I am just going with the first one, created. Rule criteria, एक criteria mention करना जरूरी होता है process builder में. So let me, because email notification की बात कर रहा हूँ, so let me have this HR email ID not equals to blank. The HR email ID should not equals to blank. अगर if it is blank, तो हम नहीं चाहते कि हमारा workflow fire हो, because we literally don't want to waste our resources. We don't want to waste our resources, and this kind of error, this kind of exception is called as null pointer exception. So as a developer, मैं काफी बार repeat करता हूँ, almost हर batch में ये चीजें मैं बताता हूँ. As a developer, it's our responsibility to avoid the null pointer exception. ठीक है. So चलिए, तो उसको मैं करता है save and next करता हूँ, मैं आगे बढ़ता हूँ. Now here what you want, here is in, अब यहाँ पे वो difficulty आएगी. You want to add an time dependent action. First of all, create an time dependent action. ठीक है. So what is the minimum? See, what is the minimum you can select is 1 hour. Okay, 1 hour. If you go below this, I mean, if you want to select 0.5, and if you try to save this, it is going to throw you an error. It must be a whole number, and that is what that is what the error is. That is what the error is. कि आप जो है ना, you cannot select below 1 hour as a time. तो अब इसको कैसे सॉल्व करना, वो मैं आपको सिखाने वाला था. So before creating this workflow, what we need to create a formula field on the HR manager. ठीक है. HR manager पे जाके एक formula field हमको create करनी है, few fields और create a new field. अब देखो यहाँ से process start होता है. What do you want to create? I want to create a formula. So select this formula and press the next button. ठीक है. Someone mic is on. Yeah.
Sir, Yes, Manjari. Yes, Manjari. there are actually lots of background noises here. Can't hear you properly. I mean, I am sitting in my room and nobody's here. Sir, someone's mic might be on because humming noise is there. Okay. Yeah. This is who's this number 94396661. Can you please mute yourself? 943966171145. Can you please mute yourself? Shivam, can you please mute yourself? Shivam, can you please mute yourself? Manjari, I think now the mics are off. Now, can you please Yes, sir. acknowledge me? Yes, sir. Can you please repeat the step one? Because I could not hear you properly. Okay, okay. I'm definitely going to repeat. Yeah. Okay. So, Thank you, sir. let me go back to this situation. Let me first repeat this. Okay. See here. दिक्कत क्या थी आप लोगों को दिक्कत ये था कि when you were creating this workflow when you were creating this workflow and जब आप workflow try कर रहे थे you were straightforward going and creating a workflow. You were asking to create a workflow. What you were creating, you're creating a new workflow rule. Which object? Hiring manager object. You have selected the hiring manager. Go to the next button, and then you have given some rule name. You have given some rule name over there. Whatever the rule name, maybe you have copied like what I have usually do. I copy it and just paste it over here. On what criteria? On the selected criteria is created. The rule condition what you have selected, the HR email ID should not equals to blank. That is what you have selected. Okay, we already have this. That's not the issue. And you were creating a time dependent action. You probably select this as a 1 hour. If you select this 1 hour, तो select हो जाएगा. But if you try to select it 0.5, like half an hour, okay, what it's going to give you? It's going to give you one error. Okay, it must be a whole number. तो इसका मतलब ये होगा कि you can at least select 1 hour. 1 hour तो select कर सकते हो. इसके नीचे नहीं select कर सकते. So the time triggers, the time trigger what you can create can be minimum of 1 hour. 1 hour के नीचे नहीं जा सकते. And that is what that was the error what you were getting that time. तो अब उसी को मैं यहाँ पे rectify कर रहा हूँ. So before going to create this, you need to go and create a formula field inside this HR manager. Now, how to create a formula field? Let me once again revise this one. Go to the HR manager and the same navigation, how to create a field. We go with this navigation to create a new field inside this, inside any object. So just click on this, select the formula, and then select the next button and give any name, give any name. Let me give this name. Record creation minus 45. Let me try to give this name. Record creation minus 45. यहाँ पे आपको फिर फॉर्मूला रिटर्न टाइप देना है, तो फॉर्मूला रिटर्न टाइप शुड बी डेट एंड टाइम. ठीक है, डेट एंड टाइम आपने सिलेक्ट करना. जो भी मैं स्टेप्स यहाँ पे करता जा रहा हूँ, तो रिकॉर्ड तो हो ही रहा है, फिर भी अगर कुछ लिखना चाहते हो तो लिख लो, रिकॉर्ड तो हो रहा है, फिर भी आप चाहो तो लिख सकते हो इसको. फॉर्मूला रिटर्न टाइप में डेट एंड टाइम सिलेक्ट कर लीजिए, प्रेस द नेक्स्ट बटन. नाउ हियर यू नीड टू ऐड अ फॉर्मूला. अब यहाँ पे आपको फॉर्मूला ऐड करना है. ठीक है, तो मैं फॉर्मूला क्या ऐड कर रहा हूँ यहाँ पे. अब मैंने डेट एंड टाइम ले रखा है, तो जितनी भी डेट और टाइम वाली सिलेक्टेड है वो सारी फील्ड्स यहाँ पर आएंगी. सो आई वांट दिस टू बी ऑन द लास्ट मॉडिफाइड. एक मिनट, क्रिएटेड डेट दूंगी या लास्ट मॉडिफाइड, कोई बात नहीं बेटा. I want this on the last modified date minus 45. ठीक है, 45 मैं बताता हूँ फॉर्मूला क्या है. That multiplied by 0.00069. 0.069 is the value of 1 minute. ठीक है, 0.069 is the value of 1 minute. So this multiplied by this is 45 minutes. Now 1 hour minus 45 minutes is 15 minutes. ठीक है, तो according to this I am creating this formula. Last modified date जो भी होती है, that minus 45. Last modified created date भी ले सकता हूँ वैसे तो मैं यहाँ पे. Let me just think it over.
क्रिएटेड डेट लिया तो भी चलेगा, दोनों चलता है यहाँ पे, क्रिएटेड और लास्ट मॉडिफाइड दोनों चलता है। यूजुअली क्रिएटेड दिया तो भी चलेगा और लास्ट मॉडिफाइड लिया तो क्रिएट एंड अपडेटेड दोनों पे लग जाएगा, इसलिए मैं लास्ट मॉडिफाइड ले रहा हूँ वैसे, ठीक है। अच्छा दोनों इंसर्ट हो गए तो उस हिसाब से मैंने ये ले लिया। देन -45 मल्टीप्लाइड बाय 0.00069 इज द वैल्यू ऑफ 1 मिनट, तो दिस एक्चुअली इम्प्लाइज टू 45 मिनट्स। तो जो भी यहाँ पे यहाँ की जो वैल्यू रहेगी, यहाँ 1 आवर दूंगा मैं, 1 आवर माइनस 45 मिनट्स, तो डेट कम्स आउट टू बी 15 मिनट्स। इस तरह से ये फॉर्मूला काम करने वाला है, ठीक है। If you want to check the syntax, you can check the syntax also, ठीक है। So no syntax error. Click the next button. Make it visible for all profile user. Click the next button. Just अरे save and new कर दिया, save ही करना था काफी। Save. So now, like we have created one. Let me just go and verify this whether we have created anything or not. Now view fields. दो क्रिएट हो गए थे, तो डाउट ही हो रहा था, 2 बार मैंने सेव किया था ना, 2 क्रिएट हो गए थे। ठीक है कोई बात नहीं, 2 क्रिएट हो गए तो क्या हो गया, दोनों का फॉर्मूला एक ही है। तो रिकॉर्ड क्रिएशन -45 नाम से मैंने एक फॉर्मूला बनाया है, ठीक है। अब ये फॉर्मूले के ऊपर मैं आगे का काम करता हूँ। सो नाउ आई एम गोइंग टू क्रिएट दिस, लेट मी जस्ट क्लोज दिस, बहुत सारे विंडोज हो गए यहाँ पे। Let me close this and now create one workflow for this। एक workflow create कर लेते हैं, global workflows। New rule based on the hiring manager। Click on the next। ठीक है, this name I'm going to created पे लगाऊंगा because time dependent actions है। HR email ID should not equals to null, then save and next। Now create a time trigger। अब यहाँ पे जो आप time trigger create करने वाले हो तो उस पर आता है, ठीक है। One hour after HR manager record creation -45 minutes। अब इसको समझो, 1 hour -45 minutes कितना होता है बताइए। 1 hour is what? 60 minutes। 60 minus 45 is how much? 15 minutes। 15। तो अब जो आपने यहाँ पे ये टाइम ट्रिगर क्रिएट किया विद दिस फॉर्मूला, यहाँ से तो 1 hour, अब देखो एक चीज ना, एनोटेट करें, यहाँ से जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 1 hour। यू आर गोइंग टू गेट द 16 मिनट्स, ठीक है। यू आर गोइंग टू गेट द 16 मिनट विद दिस सिलेक्शन, विद दिस फॉर्मूला इट विल इवेंचुअली गोइंग टू माइनस द 45 मिनट्स फ्रॉम दिस सिलेक्शन। ये सिलेक्शन से आपको रिजल्ट क्या मिल गया? 1 hour। 1 hour यानी 60 मिनट। विद दिस फॉर्मूला 60 में से 45 मिनट्स माइनस हो जाएंगे, तो अब आपका जो रूल फायर होगा वो कितने मिनट्स में फायर होगा? 15 मिनट्स में। अगर ये 20 मिनट्स का होता तो आप जाइए फॉर्मूला में चेंजेस कर दीजिए, यहाँ पे जो 45 लिया उसके हिसाब से वैल्यूज एडजस्ट करें, ठीक है। 20 है तो उसको 40 कर दीजिए, 30 है तो उसको 30 कर दीजिए। तो ये फॉर्मूला इस तरह से बनाया जाता है कि 1 hour आपको 1 hour ही सिलेक्ट करना पड़ेगा, 1 hour यानी 60 मिनट। अब उसमें से कितना, अगर आपको 15 चाहिए तो -45 का फॉर्मूला बनाओ, 20 चाहिए तो -40 का फॉर्मूला बनाओ। तो आपको ना फॉर्मूला क्रिएट करना पड़ता है। नाउ गो बैक एंड चेक दिस। तो इस तरह से ये बनाते हैं। अब इसको कर लो भाई एंड सेव दिस, ठीक है। तो यहाँ पर अब एक्शन ऐड करिए, आपको ईमेल अलर्ट्स भेजना है। ईमेल का डिस्क्रिप्शन, न्यू HR मैनेजर क्रिएशन नोटिफिकेशन अलर्ट, ठीक है। दिस नेम, ईमेल टेम्पलेट पता नहीं है या नहीं मेरे पास, लेट मी ट्राई टू सी बिकॉज मैं अपने लैपटॉप पे हूँ नहीं अभी। न्यू कैंडिडेट केस न्यू HR मैनेजर फॉर्चुनेटली है, ठीक है। चलो
यहाँ से ईमेल फील्ड उठाइए, एचआर की जो भी एचआर ऑब्जेक्ट में जो भी ईमेल फील्ड होगी उसको सिलेक्ट करेगा। अगर आप किसी और को सीसी करना चाहते हैं तो सीसी करिए एंड जस्ट सेव दिस। ठीक है, सब हो गया है, सब रेडी है। अब इसको डन करो और एक्टिवेट करो। नाउ एक्टिव नहीं है सो मेक इट एक्टिवेट। एक्टिवेट कर लीजिए, रूल एक्टिवेट हो गया। अब टेस्ट करना है तो टेस्ट करने के लिए, अच्छा इसको क्लोज कर देता हूँ। टेस्ट करने के लिए आपको एचआर मैनेजर्स में जाना पड़ेगा। एचआर मैनेजर्स में जाने के बाद यू नीड टू क्रिएट अ रिकॉर्ड ओवर हियर। एक रिकॉर्ड में क्रिएट कर देता हूँ यहाँ पे रूल टेस्टिंग, इतने काफी है। Location I could select any location. I could select any number. HR email ID. Service passing @gmail.com. Rather I could give this Salesforce. अच्छा, कभी कभी जरूरी नहीं एकदम 15 मिनट्स में हो, थोड़ा ऊपर नीचे होता है बिकॉज क्लाउड टेक्नोलॉजी है तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है। तो मैंने यहाँ पर एक रिकॉर्ड सेव तो कर दिया है, सेव कर दिया है, मेरा मतलब वर्क फ्लो रूल फायर हो गया ना। व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग वन ईमेल ओवर दिस, इसलिए मैंने ये दिया था क्योंकि वैसे एसएफडीसी का मेरा जो है पासवर्ड मुझे याद नहीं है और क्रेडेंशियल्स वाली फाइल है नहीं, ये मेरा लैपटॉप है नहीं, तो मैंने ये एक ओपन किया था। तो अब इसलिए मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 15 मिनट बाद मतलब करीब 12:30 के आसपास यहाँ पर ईमेल आ जाना चाहिए। ठीक है, तो चलो अगर उतनी क्लास रहती तो ठीक है, देख लेते हैं, अदरवाइज आया तो फिर बाद में मैं स्क्रीनशॉट शेयर कर दूंगा तुम लोगों के साथ। तो इस तरह से आप रूल क्रिएट करते हो। तो रूल क्रिएट करने के लिए पहली स्टेप है फॉर्मूला बनाओ और फॉर्मूला के ऊपर रूल क्रिएट करो। ठीक है, आप डायरेक्ट रूल क्रिएट करने जाओगे तो 1 आवर के नीचे नहीं कर सकते। एंड दिस कैन दिस सेम कैन बी डन विद दिस, आपके प्रोसेस बिल्डर से भी हो सकता है, सेम चीज हो सकती है। तो एचआर अभी जैसे मैंने ये चीज क्रिएट किया है वर्क फ्लो से, सेम आई कैन डू विद द प्रोसेस बिल्डर्स आल्सो। हो जाए बस इंटरनेट साथ देते। मे बी आई एम गोइंग टू डिस्कनेक्ट इट, मैं वापस ज्वाइन करूंगा। Sorry, I was disconnected. Yes, thank you for making me host so promptly. Let me try to refresh and see what really happens. Okay, so now let me try to do the same with the process builder also. आप process builder से भी कर सकते हो. You can create a process on the same. Create a new process builder. Give a name. Record changes. Make it save. Add the object. Select the hiring manager from here. HR manager. Process after 15. Only when the record changes, when the record is created or edited, we cannot go with this. And then make it save. अरे क्या हो गया, एक मिनट यार, अच्छा ठीक है, let me just save this. Now add the criteria name should be जैसे कि मैं देख रहा हूँ कि email ID या check the email ID ऐसा कुछ, check the email, ठीक है। तो email ID should not be blank है ना, जैसा हमने वहाँ सिलेक्ट किया था वैसे मैं यहाँ पर भी सिलेक्ट कर रहा हूँ, सेम थिंग है। HR email ID should does not equals to a global constant, which global constant, null, ठीक है। So HR email ID should not equals to null. That is what I have selected over here as the. ना immediate action नहीं है, मेरे को scheduled action यानी time dependent actions लगाने हैं, ठीक है, time dependent actions लगाने हैं। तो go with the scheduled action। यहाँ पर भी आपको same problem आती है, hours और 1 hour के नीचे आप जा नहीं सकते, सेम प्रॉब्लम, ठीक है। इसलिए आपको इंपॉर्टेंट है, आपको फॉर्मूला बनाइए। सी द सेम फॉर्मूला यू कैन इवन यूज हियर आल्सो, सेम फॉर्मूला, ठीक है। Let's go with this, make it save, ठीक है।
नाउ एड द एक्शन, अभी आपने टाइम ट्रिगर किया था, अब एक्शन टाइप ऐड करो, व्हाट एक्शन यू वांट एन ईमेल अलर्ट टू बी सेंड, ठीक है, ईमेल अलर्ट, एक्शन नेम, सेंड द ईमेल, ठीक है। तो यहाँ पर न्यू, आई थिंक मुझे ईमेल अलर्ट्स देखने पड़ेंगे इसके लिए, क्या नाम से ईमेल अलर्ट क्रिएट किया था मैंने। ईमेल टेम्पलेट नहीं चलता यहाँ पे, ईमेल अलर्ट चलता है। Yes, this is what the email alert we have created. So let me just copy this name. Let me try to go with this. Dismiss all. ये ले लिया इसने, ठीक है। तो ऐसा थोड़ा सा ट्रायल एंड एरर वाला काम रहता है, ये ले लीजिए। सेंड एन ईमेल नोटिफिकेशन जस्ट आफ्टर क्रिएशन, मेक इट एक्टिव, एक्टिव कर लीजिए, एक्टिव कर दिया है इसको, एंड द प्रोसेस इज क्रिएटेड। सेम, अब सब कुछ हो गया, प्रोसेस आपकी एक्टिवेट हो चुकी है। इफ यू सी 15 मिनट्स रूल is active, see 15 minutes rule is active. Same thing again happen if you go back and create HR manager पे जाके कोई नया रिकॉर्ड क्रिएट करते हो, ठीक है, 15 minutes from process, 15 minutes from the process builder, ठीक है। अगर ऐसा करते हैं तो फिर एक और ईमेल आ जाएगा इसका, सिलेक्ट द सेम थिंग, जो भी ईमेल आईडी देनी है आपको, अपना लैपटॉप नहीं रहा तो बहुत सारे टाइपिंग एफर्ट्स बढ़ जाते हैं वहाँ तो हर चीज़ हाईलाइट हो जाती थी। तो अब मैंने एक और रिकॉर्ड सेव कर दिया। सो व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग कि मेरे को यहाँ पे ईमेल आ जाना चाहिए 15-15 मिनट की गैप में, ठीक है। तो वो देखते हैं, अगर हमारी क्लास रही तो हो जाएगा, तो अगर आगे तो दिखा दूंगा, अदरवाइज आ जाता, नहीं तो मैं स्क्रीनशॉट शेयर करूंगा आप लोगों से। तो इस तरह से आप रूल क्रिएट करेंगे। तो याद रखो, इसके लिए पहले आपको एक फार्मूला फील्ड क्रिएट करनी है, और वो फार्मूला फील्ड आप यूज कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे 2 बना दिए, गलती से 2 बार सेव कर दिया था। तो ये फार्मूला फील्ड जो आपने क्रिएट करी है, ये फार्मूला फील्ड आप 2 जगह यूज करेंगे, ठीक है। आप इसको प्रोसेस बिल्डर पे भी यूज कर सकते हैं, और आप इसको चाहें तो वर्क फ्लो भी कर सकते हैं। और ये लास्ट मॉडिफाइड डेट है, अगर आप चाहें तो इसको क्रिएटेड डेट लिया तो भी कोई तकलीफ नहीं है। यहाँ पे क्रिएटेड डेट भी लिया आपने तब भी कोई तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे जो आप क्राइटेरिया लगा रहे हो वो क्रिएटेड पे लगा रहे हो। अगर आप क्रिएटेड एंड अपडेटेड दोनों पे लगाते, देन यू कैन गो विद द लास्ट मॉडिफाइड डेट लेना पड़ता था। लेकिन क्योंकि अभी आपका क्राइटेरिया सिर्फ क्रिएटेड पर है, तो आप क्रिएटेड डेट लो या लास्ट मॉडिफाइड डेट लो, दोनों सूरतों में सेम काम करेगा। डिफरेंस क्या है वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो ये फार्मूला बनाइए, फॉर एग्जांपल अगर आपको 30 मिनट्स के बाद फायर करना है, तो 1 आवर माइनस 30 इज 30 मिनट, तो 30 कर दो इसको फिर, ठीक है। अगर आपको 10 मिनट्स के बाद करना है तो इसको 50 कर दो, इस तरह से। तो जैसा भी हो मॉडिफिकेशन आप अपने हिसाब से करके ये रूल इस तरह से बनाया जाता है। तो एक तो ये चीज़ थी। दूसरा, लोगों ने मुझसे ये पूछा कि सर हमें डायरेक्टली टास्क क्रिएट करने का ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है। जैसे कि वर्क फ्लो में 4 एक्शंस होते थे, सेंडिंग एन ईमेल अलर्ट, क्रिएटिंग अ टास्क, उसके बाद सेंडिंग द आउटबाउंड मैसेजेस, अपडेटिंग अ फील्ड। तो उसमें से क्रिएटिंग अ टास्क करके डायरेक्ट ऑप्शन हुआ करता था। बट हाउ कैन वी क्रिएट अ टास्क इनसाइड दिस प्रोसेस बिल्डर में, कैसे करते हैं? डायरेक्ट ऑप्शन नहीं होता है। तो ठीक है, डायरेक्ट ऑप्शन नहीं होता है, बट देखिए टास्क और इवेंट ये आपकी ऑब्जेक्ट्स हैं। टास्क और इवेंट्स क्या आपके, दीज आर योर ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। टास्क ऑब्जेक्ट, इवेंट ऑब्जेक्ट, ये सब आपकी ऑब्जेक्ट्स हैं। और अगर आप जैसे अगर अकाउंट क्रिएट करना है, फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल सोचता हूँ, अगर आपको मैं कहूँ कि अकाउंट क्रिएट करो, अकाउंट क्रिएट करने का मतलब क्या होता है? अकाउंट ऑब्जेक्ट में जाइए और एक रिकॉर्ड क्रिएट करिए। अकाउंट ऑब्जेक्ट में जाके एक रिकॉर्ड क्रिएट कर लीजिए, कोई भी एक रिकॉर्ड क्रिएट कर लीजिए, ठीक है। अगर आपने एक रिकॉर्ड क्रिएट कर लिया मतलब आपने एक अकाउंट क्रिएट कर लिया। इफ यू गो विद द कॉन्टैक्ट ऑब्जेक्ट, कॉन्टैक्ट में ऑब्जेक्ट में जाके अगर आपने कुछ क्रिएट किया मतलब आपने कॉन्टैक्ट क्रिएट कर लिया। अगर आप लीड ऑब्जेक्ट में जाके आपने एक रिकॉर्ड क्रिएट किया, इफ यू गो विद दिस न्यू, है ना, न्यू बटन प्रेस किया और यहाँ पे बाय एंटरिंग ऑल दिस डिटेल मेक इट सेव, तो आपने क्या क्रिएट किया? आपने एक लीड क्रिएट किया। तो क्रिएटिंग अ रिकॉर्ड मींस क्रिएटिंग दैट ऑब्जेक्ट, ऐसा बोल सकते हैं अपन। जैसे मैं कहूँगा अगर अकाउंट क्रिएट करो, अगर मैं आपसे बोल रहा हूँ अकाउंट क्रिएट कर दो, उसका मतलब क्या होगा? आपको अकाउंट ओपन करना पड़ेगा, एक फॉर्म फिल करना पड़ेगा और पूरी डिटेल फिल करने के बाद सेव करना पड़ेगा, तो अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, है ना। अगर मैं आपसे बोल रहा हूँ टास्क क्रिएट करो, आप ध्यान से सुनो, टास्क क्रिएट करो मतलब क्या होगा? टास्क ऑब्जेक्ट में जाओ, डिटेल्स को फिल करो, एक रिकॉर्ड क्रिएट कर लो।
So creating a record inside the task, this is as good as creating a task. Creating a record inside the event object, this is as good as creating an event. तो ठीक है, आपके पास डायरेक्ट ऑप्शन नहीं है. यस आई नो देयर इज नो डायरेक्ट ऑप्शन, दैट इज व्हाई आई हैव गिवन यू दिस प्रॉब्लम. हर चीज अगर मैं साफ साफ सीधा सीधा दूंगा तो आप सीखोगे कैसे यार. ठीक है, चलो. देयर इज नो डायरेक्ट ऑप्शन. ट्राई टू क्रिएट वन प्रोसेस बिल्डर्स. देयर इज नो डायरेक्ट ऑप्शन. टू क्रिएट अ टास्क एंड इवेंट. बट टास्क एंड इवेंट क्रिएट करने का मतलब टास्क ऑब्जेक्ट में रिकॉर्ड क्रिएट करना. ठीक है, टास्क ऑब्जेक्ट में रिकॉर्ड क्रिएट करना या इवेंट क्रिएट करना मतलब रिकॉर्ड क्रिएट करना. तो क्रिएट अ रिकॉर्ड ऑप्शन है आपके पास, क्रिएट अ टास्क ऑप्शन नहीं है, बट क्रिएट अ रिकॉर्ड ऑप्शन है. असाइनिंग अ टास्क रिकॉर्ड टू द करंट यूजर अपॉन क्रिएटिंग अ न्यू लीड रिकॉर्ड. लेट मी गो विद दिस. ठीक है, सिलेक्ट वन एज सून एज द रिकॉर्ड चेंजेस. ऑन द रिकॉर्ड चेंज लेट मी जस्ट सेव दिस. ठीक है, नाउ ऐड द ऑब्जेक्ट. यू वांट टू मेक इट ऑन द लीड ऑब्जेक्ट. ठीक है, हमको लीड ऑब्जेक्ट से काम है. सो लेट मी सिलेक्ट द लीड. आई वांट टू मेक इट हैपन ऑन द लीड ऑब्जेक्ट ओनली व्हेन द रिकॉर्ड इज क्रिएटेड. यस, अभी रिकॉर्ड क्रिएटेड पर ही लगा रहा हूँ मैं. क्या था क्वेश्चन, क्या है पढ़ने दो. हाँ, रिकॉर्ड क्रिएटेड पर ही है. रिकॉर्ड क्रिएटेड लीड ऑब्जेक्ट एसोसिएटेड विद द बैंकिंग एंड हैविंग एनुअल रेवेन्यू. ठीक है, क्रिएटेड पर ही है. सो गो विद दिस लीड ऑब्जेक्ट, क्रिएटेड पर ही लगा देता हूँ. लेट मी जस्ट सेव दिस. नाउ एट द क्राइटेरिया, यहाँ पे रूल कंडीशंस देनी है आपको. चेक द कंडीशंस चेक करनी है. कौन कौन सी कंडीशंस है, एक एक करके कंडीशंस में जाऊंगा मैं. ये कंडीशंस में है, पहली कंडीशन क्या, इंडस्ट्री की वैल्यू बैंकिंग होना चाहिए. सो लेट मी सिलेक्ट दिस इंडस्ट्री. लीड का इंडस्ट्री शुड इक्वल्स टू पिक लिस्ट. व्हाट, इट शुड इक्वल्स टू बैंकिंग. पहला रूल क्राइटेरिया ये हो गया. दूसरा क्या है, एनुअल रेवेन्यू शुड मोर देन 50 lakhs. ठीक है, ओके. ऐड वन रो ओवर हियर, मेक दिस एनुअल रेवेन्यू. एनुअल रेवेन्यू सिलेक्ट करो. should be greater than currency. What currency is 50 lakh, 1 10 100 1000 10,000 lakh 10 lakh over this. ठीक है, so these are the two conditions mentioned in the use case. तो मैं उसके हिसाब से गया. ठीक है, now let me go and save this. now add the immediate action. अब यहाँ पे आप ढूंढ रहे थे आप सभी लोग for creating a task option होना चाहिए. creating a task option नहीं है यहाँ, creating an event option नहीं है यहाँ पे. ठीक है, तो हाउ टू क्रिएट अ टास्क, क्रिएट अ रिकॉर्ड. वही मैं आपसे कह रहा था कि अकाउंट क्रिएट करना मतलब अकाउंट रिकॉर्ड में, अकाउंट ऑब्जेक्ट में रिकॉर्ड क्रिएट करना. तो टास्क क्रिएट करना मतलब क्या हुआ, टास्क ऑब्जेक्ट में रिकॉर्ड क्रिएट करना इज एज गुड एज टास्क क्रिएट करना. इवेंट ऑब्जेक्ट में, टास्क एंड इवेंट दीज आर ऑब्जेक्ट्स. इवेंट ऑब्जेक्ट में रिकॉर्ड क्रिएट करना दिस इज एज गुड एज इवेंट क्रिएट करना. सो सिलेक्ट अ रिकॉर्ड. ठीक है, यहाँ पे नाम दो उसको टास्क क्रिएशन. दिक्कत होती है लैपटॉप, दूसरे के लैपटॉप क्या होता है, अपनी आदत हो जाती है कीपैड पे. रिकॉर्ड टाइप कौन सा ऑब्जेक्ट, आई वांट टास्क ऑब्जेक्ट. तो अब देखो मैं टास्क ऑब्जेक्ट में रिकॉर्ड क्रिएट कर रहा हूँ. ठीक है, यहाँ पे थी थोड़ी डिफिकल्टी, असाइनिंग टू आईडी. कौन सी आईडी, आई वांट टू सिलेक्ट एन आईडी. कौन सी आईडी, तो अब यहाँ पे असाइनिंग टू आईडी. फॉर्मूला ग्लोबल फील्ड रेफरेंस लेता हूँ. ठीक है, फील्ड रेफरेंस असाइन टू आईडी. लीड के अंदर यूजर आईडी कौन कौन सी होती है, क्रिएटेड बाय आईडी, ओनर आईडी यूजर, ठीक है. उसके बाद आईडी, कॉन्ट्रैक्ट आईडी, मैनेजर आईडी, यूजर आईडी. यस, ये लिख लो जरा सा आप लोग. ठीक है, लीड ऑब्जेक्ट में जाके जो भी यूजर है जिसने वो लीड क्रिएट किया उसका आईडी कैप्चर करना. लीड ऑब्जेक्ट में जाके, जैसे हम है यूजर अभी फिलहाल. ठीक है, हमने जो लीड क्रिएट किया, रिकॉर्ड क्रिएट किया, उसका आईडी कैप्चर करना. और बिकॉज वी आर ऑल्सो यूजर, तो हमारी आईडी यूजर से कैप्चर करना. ये एक फॉर्मूला है, इसको देख लो मैंने फिर से कैसे किया, फिर से देख लो आप. असाइन टू व्हाट, असाइन टू आईडी. आईडी ही रहने दो, बिकॉज देखो टास्क और इवेंट कभी भी यूजर को असाइन होते हैं. आप ये क्वेश्चन भी देख लो,
लीड टू असाइन अ टास्क टू द करंट यूजर, यूजर को असाइन होते हैं टास्क और इवेंट, हमेशा किसको असाइन होते हैं, यूजर को। तो आपको उसको असाइन करना पड़ेगा। असाइन टू होम, असाइन टू आईडी, असाइन टू आईडी ही रहने दो। यहाँ से आईडी था पहले, आईडी को निकाल के फील्ड रेफरेंस कर दो, ग्लोबल कांस्टेंट भी नहीं, फील्ड रेफरेंस, फील्ड रेफरेंस नहीं सॉरी फॉर्मूला कर देते हैं। क्या किया था मैंने, फील्ड रेफरेंस, हाँ फील्ड रेफरेंस ही करो उसको। फील्ड रेफरेंस में सब फील्ड सिलेक्ट करो। लीड में से कौन सी फील्ड चाहिए, लीड में से आप उठाइए ओनर का आईडी। यहाँ पे ओनर आईडी क्यू और ओनर आईडी यूजर दो है, उसमें से आप ओनर आईडी उठाइए, ठीक है, यूजर का ओनर आईडी। और ओनर आईडी यूजर ऑब्जेक्ट में जाकर फिर एक और चीज उठानी है, वो है यूजर आईडी, ठीक है। ये चीजें जरा सा अच्छे से लिख लो, इसको सिलेक्ट करो, ठीक है। उसके बाद में प्रायोरिटी, प्रायोरिटी क्या करना है, तो प्रायोरिटी एक क्विक लिस्ट है, प्रायोरिटी शुड बी हाई, स्टेटस शुड बी व्हाट, स्टेटस शुड बी इन प्रोग्रेस या नॉट स्टार्टेड जैसा भी। और एक और इम्पोर्टेंट चीज है, सब्जेक्ट नाम की चीज रहती है वहां पे, सब्जेक्ट भी जरूरी है, बिकॉज विदाउट सब्जेक्ट टास्क क्रिएट नहीं होते। सब्जेक्ट स्ट्रिंग, यहाँ पर अब आप देख सकते हो, यहाँ जो आपको दिया हुआ था, असाइनिंग अ टास्क टू द करंट यूजर, क्रिएटिंग अ न्यू रिकॉर्ड, क्रिएटिंग अ न्यू लीड रिकॉर्ड। अरे लाइट चली गई है बॉस, लाइट चली गई है, लाइट चली, रुको मैं स्विच करता हूँ। अरे यार एक मिनट में स्विच कर रहा हूँ। हॉटस्पॉट पे ले रहा हूँ मैं, 2 मिनट स्विच कर रहा हूँ मैं नेटवर्क को। मैं ऑडिबल हूँ आप लोगों को, प्लीज एक्नॉलेज। ऑडिबल हूँ, स्क्रीन शेयर हो रही है, सब सही है। थोड़ा सा डिस्टर्बेंस रह सकता है बिकॉज मोबाइल पे हूँ। आखिरी एग्जांपल इसलिए कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, सो सब्जेक्ट को यहाँ पे ये कुछ भी सब्जेक्ट आप अपने मन से दे सकते हैं, बस गिविंग अ सब्जेक्ट इज एसेंशियली इंपॉर्टेंट। सब्जेक्ट नहीं दोगे तो भी टास्क क्रिएट नहीं होते कभी कभी, ठीक है। इसलिए ये, और ये यहाँ पे मेंशन नहीं था, अलग से ऐड किया मैंने। आप चाहे तो और वो ऐड कर सकते हो। मैं इसको सेव करता हूँ विद ऑल दीज डिटेल्स। उसके बाद देखते हैं आगे क्या आता है। एक्टिवेट करना पड़ेगा इसको, टास्क क्रिएशन सब कुछ ठीक है। अब व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग कि मेरे को होम ऑब्जेक्ट पे जाने के बाद यहाँ पे एक टास्क मिलना चाहिए, इसको हाइड कर देता हूँ, ठीक है। डैशबोर्ड, कैलेंडर, माय टास्क, यहाँ पे मुझे एक टास्क मिलना चाहिए, ठीक है। दिस इज व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग आफ्टर एक्टिवेटिंग दिस। सो लेट्स एक्टिवेट दिस, कंफर्म। चलिए ये तो क्रिएट हो गया है। अब लेट्स गो टू द होम पेज और इसको रिफ्रेश करते हैं। यहाँ पे अभी जो सब्जेक्ट मेंशन किया है उस सब्जेक्ट के हिसाब से एक टास्क मेरे को एक्सपेक्टेड है कि आना चाहिए। दिस मंथ ऑल ओपन, प्रोसेस बिल्डर, न्यू टास्क असाइन, नहीं नहीं न्यू टास्क, ये है न्यू टास्क ऑन द लीड, ये देखो इस नाम से क्रिएट हुआ है, ठीक है। न्यू टास्क, न्यू टेस्ट टास्क ऑन द लीड है कि प्रोसेस बिल्डर, क्या नाम से क्रिएट हुआ है, तो इस नाम से क्रिएट हुआ है। अभी किस नाम से सेव किया मैंने, नाम ही भूल गया यार उसका। प्रोसेस ऑन द लीड ऑब्जेक्ट टू असाइन अ टास्क, इस नाम से। प्रोसेस टुडे ओवरड्यू, ओवरड्यू में जाता हूँ तो क्या मिलता है, प्रोसेस बिल्डर न्यू टास्क असाइनमेंट, नहीं टास्क क्रिएट क्यों नहीं हुआ। दिस मंथ ऑल ओपन, प्रोसेस टेस्ट रिकॉर्ड, अच्छा न्यू प्रोसेस टेस्ट रिकॉर्ड है, न्यू प्रोसेस टेस्ट रिकॉर्ड इस नाम से मिलना चाहिए। प्लस ओवरडे,
चलो देखते हैं इसको फिर से। जब तक लीड रिकॉर्ड क्रिएट नहीं करोगे तब तक कैसे क्रिएट होगा? ऑब्वियसली यू फर्स्ट नीड टू क्रिएट अ लीड रिकॉर्ड। जब लीड रिकॉर्ड क्रिएट करोगे तब जाके वो क्रिएट होगा भाई। मैं भी कहाँ चक्कर में पड़ रहा हूँ। ठीक है, तो न्यू प्रोसेस ऑन द लीड प्रोसेस न्यू। ठीक है, चलो पहले एक लीड रिकॉर्ड क्रिएट करते हैं अपन। ठीक है, जब लीड रिकॉर्ड क्रिएट करेंगे तब जाके रिकॉर्ड क्रिएट होगा। मैं भी चक्कर में फंस गया, फिर से लाइट चली गई। चलिए एक लीड रिकॉर्ड क्रिएट करते हैं जिसकी इंडस्ट्री जो हो, यहाँ पे अब मैं नाम देता हूँ टेस्ट लीड रिकॉर्ड फॉर प्रोसेस। कंपनी नेम कुछ देना पड़ेगा बिकॉज मैंडेटरी है, एबीसी। इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट है इंडस्ट्री मस्ट बी बैंकिंग, बिकॉज ये आपने रूल क्राइटेरिया दे रखा है। और एनुअल रेवेन्यू शुड बी ग्रेटर देन 50 lakhs, 1, 10, 100, 1000, 10,000, lakh, 10 lakh करो। लीड स्टेटस कुछ भी रखो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। और अब इसको सेव करो। तो एक लीड रिकॉर्ड क्रिएट हुआ है जिसकी इंडस्ट्री बैंकिंग है और एनुअल रेवेन्यू इससे ज्यादा है। अब जाते हैं हम लोग होम पेज पे। नो, लेट्स गो टू द होम पेज एंड नाउ सी वेदर प्रोसेस बिल्डर इज वर्किंग और नॉट। ऑल ओपन, न्यू टास्क, न्यू टेस्ट टास्क, क्रिएटिंग अ ट्यूट्स। अब तो हो जाना चाहिए यार। प्रोसेस बिल्डर न्यू टास्क असाइनमेंट, ये क्रिएट हो रहा है, ये 2 बार क्रिएट हो रहा है। एक्चुअली इसका दूसरा वर्जन डीएक्टिवेट करना पड़ेगा मुझको। प्रोसेस बिल्डर के 2 वर्जन्स चल रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि एग्जाम्पल सॉल्व करके दे दिया था। इसलिए देखो इसने एक रिकॉर्ड तो क्रिएट किया है लेकिन ये नाम से उसके 2 वर्जन चल रहे हैं, तो एक वर्जन डीएक्टिवेट करना पड़ेगा। सो बराबर है, तो रिकॉर्ड क्रिएट हो रहा है। प्रोसेस बिल्डर न्यू टास्क असाइनमेंट के नाम से 2 क्रिएट हो गया, एक अभी अभी क्रिएट हुआ है। ठीक है, तो ये एक्चुअली एक पुराना था, एक अभी क्रिएट हुआ है। वो इसलिए हो रहा है क्योंकि ये सेम प्रोसेस मैंने इसके पहले इस बैच में बना दिया था, तो इसके 2 वर्जन चल रहे हैं जिसमें से एक वर्जन मेरे को डीएक्टिवेट करना पड़ेगा। प्रोसेस ऑन द लीड ऑब्जेक्ट टू असाइन अ टास्क, असाइनिंग अ टास्क रिकॉर्ड टू द करंट यूजर अपॉन क्रिएटिंग, ये भी लीड के ऊपर है और ये भी लीड के ऊपर है। और एक को डीएक्टिवेट करना पड़ेगा, एक और कोई होगा टास्क असाइनमेंट ऑन द लीड ऑब्जेक्ट, देखो ये भी। सो बेसिकली क्या हो रहा है, आप देखो यहाँ पर ये है लीड पे, ये भी एक्टिव है। सेम चीज ऑल्सो हैपनिंग विद दिस, ये लीड पर है, ये भी एक्टिव है। ये एक और मैंने बना रखा है ये वाला, हालांकि ये इनएक्टिव है, लेकिन 2 रूल एक्टिवेटेड हैं। इसकी वजह से हमको समझ नहीं आ रहा था, तो मुझे एक कोई डीएक्टिवेट करना पड़ेगा और फिर टेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, बट हाँ चलो ये एक प्रूफ हो गया आपको कि एटलीस्ट रिकॉर्ड तो क्रिएट होता है टेस्ट ऑब्जेक्ट से। ठीक है, और यही इवेंट से भी होता है। अगर आप इवेंट ऑब्जेक्ट पे जाके करो तो यहाँ पर आपको एंट्री मिल जाती है। तो इस तरह से बेसिकली प्रोसेस बिल्डर से आप रिकॉर्ड क्रिएट करेंगे। अब मैंने 3 वर्जन बना के रखे जिसमें से 2 वर्जन एक्टिवेटेड है। ये वाला, ये वर्जन भी एक्टिवेटेड है और ये वर्जन भी एक्टिवेटेड है, इसलिए हमको यहाँ पे ये दिख रहा है इस तरह से। फिर भी एक और नाम तो आना चाहिए था यहाँ पे। ठीक है, मैं इसे वर्कआउट कर लेता हूँ, देखता हूँ मैं कि दोनों में से एक क्यों चल रहा है और एक क्यों नहीं चल रहा है। हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए था, आइडियली मेरे हिसाब से यहाँ पे दोनों नाम आने चाहिए थे। ठीक है, देख लेंगे। चलिए, इसमें कुछ पूछना है? इसमें कुछ पूछना है गाइस? चलिए ठीक है, स्टॉप करते हैं। फिर इसकी रिकॉर्डिंग में आप सब लोग की अलग अलग ड्राइव्स हैं, सबके अलग अलग ड्राइव्स पे डाल दूंगा रिकॉर्डिंग। चलो, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। कल मिलते हैं अपनी रेगुलर क्लासेस में।